Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we were discussing about nutrition in animals. Now, we have discussed about the digestive system and outlining and what is ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. Now, we will do the first very most topic which helps in digestion, that is our teeth, in detail over here. So, first topic is our teeth in human beings. Now, we have two types of teeth, that is milk teeth and permanent teeth. Now, milk teeth appear at the age by the age of 2 years and they are not permanent, means वो पूरे लाइफ लॉन्ग नहीं रहते. लाइक आप सबने देखा होगा कि जब स्मॉल थे, इन्फेंट थे, तो आपके टीथ आते थे एंड वो टूट जाते थे. दे आर नोन एज अ मिल्क टीथ. ओके. ना व्हाट अ परमानेंट टीथ, कि जब वो जो आपके टीथ हैं जो ब्रेक हो गए एंड न्यू टीथ आ गए हैं, तो न्यू टूथ जो आए हैं वो आपके परमानेंट हो गया. अब वो आपके ब्रेक होंगे तो आपके नए टीथ नहीं आएंगे. सो दीज आर योर परमानेंट टीथ. ओके. So we have two sets of teeth, that is milk teeth and permanent teeth. Milk teeth are 20 in number and they appear by the age of 2 years. Now these teeth are called milk teeth. What are permanent teeth? That is these milk teeth fall off one by one. धीरे धीरे करके सारे teeth गिर जाते हैं आपके. And the new set of 32 permanent teeth. See, आपके यहाँ पे मिल्क टीथ में 20 टीथ से अब कितने हैं? 32. दैट इज आपके पास 12 टीथ इंक्रीज हो गए एंड दीज आर फॉर्म बाय द एज ऑफ 12. जब तक 12 एज तक नहीं हो जाते, 12 एज के नहीं हो जाते, तब तक आपके टीथ मिल्क टीथ रहते हैं. बट धीरे धीरे आपके फॉल ऑन करने स्टार्ट कर देते हैं एंड बाय द एज ऑफ 12 यू विल गेट प्रॉपर सेट ऑफ 32 teeth. These are known as a permanent teeth. These 32 teeth are called permanent teeth and last for the rest of our life. Now, what are the classification of teeth on the basis of their function? So, we have four types of teeth, that is incisors, canines, premolars and molars. So, what are incisors? These are four incisors in each jaw. Jaw means your mouth part. See, you have two parts of the teeth of your jaw. I will a diagram will be appear. Now see, if you open your mouth, you will have two sides, that is one which come downward and the one which goes upward. Okay. The one which goes downward contains a tongue part. Okay. And the one which goes upward contains lip portion. Lip portion आपके पास दोनों साइड होता है, बट एक पार्ट आपका ऊपर की तरफ मूव कर जाता है. Okay. So we have two jaws, that is upper jaw and lower jaw. The jaw which come downwards with the tongue, जो टंग के साथ नीचे आ रहा है, that is your lower jaw. एंड जो माउथ पार्ट आपका ऊपर की तरफ ओपन अप हो रहा है, जो ऊपर जाए, दैट इज नोन एज अपर जो. ओके. सो वी हैव टू जॉस, दैट इज अपर जो एंड लोअर जो. देन वी हैव, इफ वी कट दिस जॉ इन 4 पार्ट्स, अगर हम 32 हैं, 32 को डिवाइड बाय 4 करेंगे कितना आएगा? 8. सो 1 to 8 is your 4. 1 to 8 is one part, then 9 to 16 is another second part, then 17 to 24 is another third part, and then 25 to 32 is another fourth part. Okay, 4 parts हो गए. Now, so we have 4 parts in our mouth, means 4 sections हो गए हमारे पास जॉ के. बट अगर हम देखें तो जॉ कितने हैं? 2, दैट इज अपर जॉ एंड लोअर जॉ. ओके. नाउ सी, we have incisors. First teeth is your incisors. If you see the counting 1, 7 to 10, 7, 8, 9, 10. Okay, these 4 are your incisors, means जो आपके फ्रंट के 4 टीथ होते हैं, they are known as your incisors. They are known as your incisors, either in upper jaw or in lower jaw. आप जो फ्रंट के 4 टीथ देखते हैं, जो आपके माउथ में फ्रंट के 4 टीथ होते हैं, they are your incisors. आप मिरर के सामने खड़े होइए, देन आप मिरर के सामने अपने फ्रंट के 4 टीथ देखिए, they are your incisors. They are helpful in cutting or biting the food. What it says that कि जो teeth हैं आपके कट और बाइट करने में हेल्प हो रहे हैं. Now whenever you tear a चपाती, आप चपाती टीयर करते हैं तो आप उसे माउथ में लेके जाते हैं. तो आप माउथ में गए तो बाइट सबसे पहले कहाँ से कट करते हैं आप? फ्रंट टीथ से. दीज फ्रंट टीथ क्या है? आपके इंसीजर्स हैं. सो दीज इंसीजर्स हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग द फूड. Now next teeth is your canine.
So what we have studied that incisors are 4 in number in each jaw. जॉ कितने हैं? 2. दैट इज अपर जॉ एंड लोअर जॉ. लोअर जॉ आपके टंग के साथ नीचे आ रहे हैं, अपर जॉ अकेला है बिना टंग के जा रहा है. दिस इज योर अपर जॉ एंड देन इज योर लोअर जॉ. सो हर एक जॉ में कितने टीथ हैं? 4 इंसीजर्स. कितने इंसीजर्स हैं? 4. दैट इज योर फ्रंट टीथ. तो इंसीजर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रंट टीथ भी बोलते हैं. तो नेक्स्ट इज योर कैनाइन. सेकेंड सेट क्या है आपका टीथ का? कैनाइन्स. नेक्स्ट टू इंसीजर्स देयर इज वन कैनाइन. आपके पास एक कैनाइन होता है. कैनाइन क्या है? बेसिकली जब आप अपना माउथ ओपन करेंगे एंड मिरर में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका एक टीथ प्रॉपरली पॉइंटेड हुआ हुआ है. वन टीथ जो 10th के साथ है, जो फ्रंट के 4 टीथ हैं उनके नेक्स्ट में जो 2 टीथ हैं आपके वो प्रॉपरली पॉइंटेड हुए हैं. These pointed teeth are known as your canine. These are known as your canine. प्लीज बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे के सामने खड़े जरूर होना एक बार. देन दीज आर योर कैनाइन. सी 6 and 11. 10th के साथ कौन सा है? 11. एंड 7 के साथ कौन सा है? 6. सो दीज आर योर कैनाइन. एंड कैनाइन की शेप देखिए बिल्कुल पॉइंटेड है नीचे की साइड से. सो दीज आर नोन एज पॉइंटेड टीथ. नाउ व्हाट इज द हेल्प ऑफ पॉइंट? अगर कोई भी चीज़ पॉइंटेड है उनका यूज़ क्या होता है कि दे कैन टीयर द थिंग्स वेरी ईजली. तो जब आपको पैकेट खोलना होता है वो हमेशा इसी टीथ के नीचे रखते हो. क्यों? क्योंकि वो पॉइंटेड है. पॉइंट को आप एकदम से उसे टीयर कर दोगे. सो द फंक्शन ऑफ कैनाइन इज टू टीयर द फ्लैश. देयर आर टू इन ईच जॉ. कैनाइन्स हेल्प इन टीयरिंग द फूड, कि आप फूड को इजीली टीयर कर दोगे. एंड बेसिकली इनका यूज सबसे ज़्यादा आपका फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होता है. मीन्स कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स में सबसे ज़्यादा होता है. दैट्स व्हाई यू कैन सी कि जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं लाइक काउ गोट होता है उनके में कैनाइन्स एब्सेंट होते हैं आपके जनरली. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट वी हैव अनदर सेट ऑफ टीथ दैट इज प्रीमोलर्स. Now next to 2 teeth on each side of the jaw we have premolars. Front 4 are your incisors. Then the next 2 are your canines and then next 2 teeth are your premolars. See 6 के साथ next 2 numbers क्या होंगे? 4 और 5 and then 12 and 13. Okay. जब आप इनसे नेक्स्ट आगे थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं एंड आपके टीथ की शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है. Okay, these are known as premolars. These are known as premolars. 2 in one portion, 2 in one portion. That is 4 in upper jaw and 4 in lower jaw. So we have total 4 premolars in upper and 4 premolars in lower jaw. These are 4 premolars in each jaw. These are helpful in chewing and grinding the food. What it says? Incisor का function क्या था? Biting और कटिंग. कैनाइन का फंक्शन क्या था? टीयरिंग. देन प्रीमोलर्स का फंक्शन क्या है? चूइंग एंड ग्राइंडिंग. मीन्स आपने फूड कट किया, टीयर किया, देन आपने इनके जो आपके 2 टीथ हैं आपके प्रीमोलर उनके बीच में रखते हैं सो दैट वो च्यू हो जाए प्रॉपर्ली और ग्राइंड हो जाए. लाइक आपका मिक्सर होता है, मम्मा घर में मिक्सर यूज़ करती है. मिक्सर क्या करता है? चीज़ों को ग्राइंड करता है ना, प्रॉपर्ली मिक्स करता है, च्यू करता है. तो वो एक्चुअली में कौन कर रहा है? आपका प्रीमोलर्स कर रहे हैं. Next is your molars. At the end there are 3 molars on each side of the jaw. आपका नेक्स्ट पार्ट में क्या है? 3 molars रह गए हैं. हर साइड पे 3 molars होंगे. Now see, 3 molars are over in the one part, then 3 molars in the one part. So it is known as your molars teeth. Now these are 6 molars in each jaw. हर एक जॉ में 6 हो गए. 3 are over here and 3 are over here. They help in chewing and grinding the food. Premolars and molars का function almost same है, chewing and grinding the food. अब आप सब ने एक अक्ल जार सुनिए, विजडम टीथ कहते हैं हम जिसे. व्हाट इज दैट? बेसिकली आपके 32 सेट्स होते हैं टीथ के. किसी किसी के टीथ स्ट्रक्चर में प्रॉपर 32 अपीयर नहीं होते. ओके, सो बेसिकली उसमें मोलर्स की एब्सेंस होती है. प्रॉपरली मोलर्स नहीं आए. किसी में 6 मोलर्स नहीं होते हैं अपर जॉ एंड लोअर जॉ में. सो दैट मीन्स कि वैसे होते 6 मोलर्स हैं बट सबके में 6 मोलर्स डेवलप नहीं हुए होते. तो जब वो टीथ आते हैं तो आपको बिल्कुल चीक्स के ऊपर वाली साइड पे पेन होता है. दैट इज नोन एज अ विजडम
teeth. Now we will see a table. The 32 sets can be classified into 4 types. Now, incisors are 4. In first teeth is your incisors that are known as front teeth. Now there are 4 in number in each jaw. Front है 4 teeth थे आगे वाले. Then total number कितने हुआ 8. पूरे माउथ के अकॉर्डिंग कह रहे हैं हम कि टोटल नंबर कितना हुआ 8. 4 in upper and 4 in lower jaw. फंक्शन क्या है बाइटिंग एंड कटिंग. फिगर आपको दे रखी है. नेक्स्ट इज केनाइन. आपको इंसिजर के नेक्स्ट कौन से थे केनाइन से 2 हर एक जॉ में अवेलेबल हैं. तो टोटल जॉ कितने हैं 2. तो 2 into 2 is 4. टोटल टीथ हो गए आपके केनाइंस. एंड इनका फंक्शन क्या है टीयरिंग. नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स 4 in each jaw and then number will become 8 because 4 in each. So we have 2 jaws upper and lower. So 4 plus 4 is 8 and function is grinding. Next is molar 6 in each jaw. So 6 into 2 is 12. So we have total molars are 12. That is your grinding function. Okay. I hope sets of teeth are clear to you. Now we will see the structure of teeth. हम पढ़ रहे कि हमारे पास इतने सारे teeth हैं. So actually में teeth का structure है कैसा. Now teeth are fixed into gums. हम कहते हैं ना कि मम्मी दांत में से खून आ रहा है. एक्चुअली में वो गम्स में से खून आता है. टीथ में से खून ब्लीडिंग कभी नहीं होती है आपकी. ओके. नाउ ईच टूथ हैज द फॉलोइंग पार्ट्स. हर एक टूथ के पास टीथ और टूथ में डिफरेंस क्या है. टूथ इज सिंगुलर एंड टीथ इज प्लूरल. ओके. सो हम एक ही टूथ का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे एंड देन दे आर इज सिमिलर विद द अनदर वन. So it contains some parts that is root, crown, neck, enamel, dentine and pulp cavity. What is root? अगर हम plant की बात करते हैं root क्या होता है. It is the first foremost part which helps in absorption of nutrients. अगर roots proper नहीं होंगी तो आपका plant proper नहीं. तो same way में अगर आपकी root को कोई damage होता है tooth की so actually में आपके पूरे tooth को damage होता है. Now the part of a tooth that embedded into the jaw. रूट क्या है वो पार्ट जो जॉ के अंदर है. मीन्स आपको ऊपर वाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है बट इस वाइट कलर के पोर्शन के अंदर भी बहुत कुछ है. दिस इज बेसिकली योर रूट्स एंड सम मोर पार्ट्स विच विल डिस्कस ओवर हेयर. बट रूट आपका हमेशा जॉ के अंदर होता है. नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ टीथ. सी you have a nerve and blood supply, periodontal membrane, cementum, pulp, dentine, enamel, crown, neck and root. You can see the root one, that is this purplish color layer containing purple dots. Okay, this is your root part which contains several blood vessels connected to it. सो बेसिकली आपको कहाँ है आपको सिर्फ वो वाइट वाला पार्ट दिखता है बट वाइट वाले पार्ट से जो अंदर का पार्ट है दैट इज योर रूट. सी आपको रूट एनलार्ज करके दिखाया उन्होंने. ओके. नाउ नेक्स्ट इज योर क्राउन. द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ आउटसाइड द गम. जो आपका टॉप पार्ट है आपको क्या दिख रहा है टूथ में सबसे ऊपर व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर. सो दिस इज योर क्राउन. सो दिस इज योर क्राउन. सी अभी वो दिखाएंगे. देखिए आपको क्राउन दिखे. यही पार्ट आपको टूथ का विजिबल होता है एक्चुअली में. नाउ द पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन. नेक क्या है आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी है. ओके. ह्यूमन बॉडी में आपका शोल्डर्स है, हेड है और हेड और शोल्डर के बीच में क्या है आपका नेक. तो सेम वे में रूट और क्राउन के बीच में जो पोर्शन है दैट इज योर नेक जो इन दोनों को कनेक्टिविटी लिंक प्रोवाइड कराता है. सी द एनलार्ज पार्ट ऑफ द नेक. रूट और क्राउन के बीच का एनलार्ज पार्ट क्या है आपका नेक. नाउ व्हाट इज एनिमल. इट इज आपके टीथ में आपके टूथ में आपको जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस दिख रहा है वो एक्चुअली में आपका एनिमल है जो बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट होता है सब्सटेंस. So it is the hardest substance in our body. अगर आपसे कोई पूछता है what is the hardest substance in your body, that is your enamel and is white color in nature. See, this one is your enamel. It is deposited outside the crown of the tooth. Okay, crown के बाहर होता है ये. एनिमल कंटेन्स कैल्शियम सॉल्ट जिसकी वजह से ये आपको वाइट कलर का अपीयर होता है. नाउ व्हाट इज डेंटाइन.
डेंटाइन इज लाइक अ बोन स्ट्रक्चर, इट इज हार्ड। डेंटाइन आपका एक बोन तरह का स्ट्रक्चर है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। नाउ सी, वो भी आपको डेंटाइन भी दिखाते हैं, रुको। सी, आपको डेंटाइन एनिमल के नीचे दिख रहा है, बोन लाइक स्ट्रक्चर है। सो एनिमल को हार्डनेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक्चुअली में आपका डेंटाइन प्रोवाइड करा रहा है। नाउ नेक्स्ट इज योर पल्प कैविटी। इनसाइड द डेंटाइन देयर इज अ सॉफ्ट पल्प कैविटी विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व। डेंटाइन के अंदर आपके पास एक सॉफ्ट पल्प कैविटी होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होती है। ये ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एक्चुअली में रूट तक जाती हैं, सो दैट अगर आपकी डेंटाइन वीक हो जाती है, सो अगर डेंटाइन वीक हो जाती है, आपके टूथ जो है गम में से निकल जाता है, ये थोड़ी सी गम्स रिमूव हो जाती हैं आपकी, ये थोड़ी सी गम्स लूज हो जाती हैं टूथ से, तो एक्चुअली क्या होता है आपका कि रूट एक्सपोज हो जाती है। एंड रूट एक्सपोज होने का मतलब है कि आपकी ब्लड वेसल्स प्रॉपरली विजिबल हो रही हैं। दैट्स वाई जो आपको एक्चुअली में पेन होता है वहाँ पे होता है, गम्स के अंदर होता है। ओके, ये हम कहते हैं कि आपको सेंसिटिविटी हो गई है। आपको कहते हैं ना कि सेंसोडाइन की पेस्ट यूज करनी चाहिए, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रूट, कि आपकी रूट विजिबल हो गया, ब्लड वेसल्स में सेंसेशंस प्रोड्यूस होंगी, कि उनकी जो कवरिंग थी वो रिमूव हो गई है। See the pulp. Pulp contains red color and blue color lines. These red and blue color lines are your blood vessels, basically which are connected to the root. So अगर ये एक्सपोज हो जाती हैं आपकी, तो एक्चुअली में आपके टूथ को बहुत ज़्यादा हार्म होता है, आपको पेन होता है टूथ के अंदर। ओके, सो इसलिए कहते हैं कि आपको गर्म ठंडा लग रहा है, यही कहते हैं डॉक्टर्स कि गर्म ठंडा तो नहीं लग रहा टूथ में। रीजन बीइंग कि आपका फिर रूट एक्सपोज हो गया, पल्प कैविटी रिमूव होनी शुरू हो गई है आपकी। ओके, so next what we will do, we have studied the structure of tooth and now we will see how to take care of teeth. Healthy teeth are white and healthy gums are pink. What it says that we have seen that some people have yellow teeth and some people have very white teeth. Like आपकी पेस्ट, आपकी एड्स आती है, एडवर्टाइजमेंट आती है, दैट इज योर पेप्सोडेंट, कोलगेट। सो व्हाट आर दे से कि आपके टीथ प्रॉपरली वाइट हो जाएंगे या आपके पेस्ट में सॉल्ट है या नहीं है। व्हाट इट एक्चुअली मीन्स कि अगर आपके टीथ, अगर आप प्रॉपरली टीथ की केयर करोगे तो वो एक्चुअली वाइट अपीयर होंगे, एंड अगर आप नहीं करते तो आपके टीथ येलो बन जाते हैं। ओके, और हेल्दी गम्स आपको हमेशा पिंक दिखेंगे। दिस इज योर टीथ। If proper care is not taken, teeth become yellowish due to the formation of sticky film. Now, अब एक्चुअली में क्या होता है कि जो आपकी येलोइश टीथ अपीयर होते हैं, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ अ फूड पार्टिकल्स, कि आपने फूड ईट किया एंड फूड ईट करने के बाद आपने प्रॉपरली माउथ वॉश नहीं किया। जब आपने प्रॉपरली माउथ वॉश नहीं किया तो आपके फूड पार्टिकल्स स्टिक हो गए आपके टीथ के साथ। ठीक है, अब जब फूड पार्टिकल्स स्टिक हो गया आपके टीथ के साथ, तो वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ जो आपका स्लाइवा है वो प्रोड्यूस होगा। व्हाट इज स्लाइवा? जब आप बोलते हैं, आप कोई स्वीट डिश के बारे में बात की जाए तो आपके मुंह से, माउथ से एक वाटर सिक्रीट होता है, दैट वाटर इज योर स्लाइवा। ओके, एंड माउथ में कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, सो वो सब आपस में रिएक्ट कर जाते हैं ना, आपको येलो कलर की फॉर्मेशन देते हैं टीथ के ऊपर। सो इट इज नोन एज योर प्लेग। सो एक्चुअली में आपको जो येलोइशनेस आ रही है वो आपका फूड पार्टिकल स्टिक होके रह गया टीथ के ऊपर, एंड वहाँ पर स्लाइवा बैक्टीरिया वर्क करना स्टार्ट करके आपके टीथ को डिकम्पोज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, खा रहे हैं उसको, तो दैट इज नोन एज प्लेग। सो अब आपको हम कहते हैं, अभी बताती हूँ आपको। सी, आपको कहीं कहीं पे व्हाइट टीथ दिख रहा है, कहीं कहीं पे येलोइश टीथ, दैट मीन्स वहाँ पे आपका फूड पार्टिकल स्टिक होकर रखे, एंड इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लेग। द प्लेग एब्जॉर्ब शुगरी एंड स्टार्ची फूड मटेरियल। सो क्या एब्जॉर्ब करते हैं? शुगरी एंड स्टार्ची फूड। स्टार्च क्या था आपका? जो प्लांट्स हैं, जो लीव्स मटेरियल्स हैं, वो ग्लूकोज बनाते हैं, और एक ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में स्टोर होता है किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। तो जो भी फूड हम खा रहे हैं वो एक्चुअली स्टार्च कंटेन कर रहा है, शुगर कंटेन कर रहा है, शुगर है उसके अंदर। सो एक्चुअली प्लेग क्या एब्जॉर्ब करते हैं? शुगर एंड स्टार्च। द बैक्टीरिया इन द प्लेग कन्वर्ट शुगर एंड स्टार्च इनटू एसिड। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है? जो प्लेग का जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? शुगर और स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है एसिड से। एंड हम सबको पता है कि एसिड क्या करता है? आपके टूथ एनिमल को डिजोल्व करना स्टार्ट कर देगा, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ केविटी इन द टूथ, जिसकी वजह से आपके टूथ के अंदर स्पेस हो जाएगा। कैविटी इज योर स्पेस। ओके, खाली स्पेस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि दांत में छेद हो गया है।
ठीक है, दांत में कीड़ा लग गया है। एक्चुअली में वो दांत में कीड़ा नहीं होता, वो आपके एक्चुअली में प्लेग होता है, जो बेसिकली आपने रेगुलरली ब्रश करने की वजह से आया होता है कि आप प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हो, प्रॉपरली अपनी टीथ की केयर नहीं करते, सो दैट कि वहाँ पे प्लेग वाली कंडीशन डेवलप हो गई, फूड पार्टिकल स्टिक होकर रह गया, स्लाइवा आया, बैक्टीरिया आया, वहाँ पे वर्क करना स्टार्ट किया एंड आपके शुगर और स्टार्च को एसिड में कन्वर्ट कर दिया। एंड ये एसिड क्या करता है, धीरे 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 आपके दांत को अंदर से खा जाता है। तभी धीरे धीरे आपके दांत को अंदर से खा जाता है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे एक होल बन जाता है, स्पेस बन जाता है, एंड दैट अपीयर्स ब्लैक इन कलर। ओके, सो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे दांत में कीड़ा लग गया। एक्चुअली वो कीड़ा नहीं होता है। ओके, नाउ गम्स होल्ड द टीथ। गम्स आपके टीथ को होल्ड कर रखते हैं। द बिल्डअप ऑफ प्लेग एट अ प्लेस वेयर टीथ मीट्स द गम लीडिंग टू अ लूजनिंग ऑफ टीथ। अब एक्चुअल में जब आपका प्लेग बिल्डअप होता है तो प्लेग क्या करता है, आपके जो पोर्शन है गम्स वाले रीजन को और जो टीथ को होल्ड करता है उनको वीक करता है, और वीक करता है तो रूट एक्सपोज हो जाएंगे ना, आपके टीथ में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ अब आपको पता है आपके टीथ में प्लेग हो सकता है, तो आपको क्या चाहिए कि आपको अपने टीथ और गम्स की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। सो प्रॉपर केयर करने के लिए क्या चाहिए, पहले मम्मा कहती है ना कि आपको ब्रश ट्वाइस अ डे, आपको एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। खाना खाने के बाद माउथ वॉश हमेशा करना चाहिए। दैट वॉज ऑल बिकॉज टू कीप योर टीथ हेल्दी। प्रॉपर ब्रशिंग ऑफ टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड अगेन बिफोर गोइंग टू बेड। मसाज योर गम्स जेंटली विद अ सॉफ्ट ब्रश। आपको ब्रश भी हार्ड नहीं लेना है, जो आप टूथ ब्रश लेते हो वो आपको बहुत सॉफ्ट लेना होता है। नाउ सी, दिस इज अ मेथड, करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग योर टीथ। फर्स्ट अपसाइड, देन इनसाइड, देन डाउन साइड, देन अपसाइड, एंड देन इन द फ्रंट टीथ। ओके, वॉशिंग योर माउथ थ्रोली विद वाटर आफ्टर एवरीथिंग। आप जब भी खाना खा रहे हैं उसके बाद आप रेगुलरली माउथ वॉश करेंगे। ईट सेल्फ क्लीनिंग फूड। सेल्फ क्लीनिंग फूड का मतलब क्या होता है, आपको स्टिकी फूड्स नहीं खाने, चिपचिपे फूड्स नहीं खाने, लाइक ज़्यादा मीठा नहीं खाना, आपको चॉकलेट्स नहीं खानी, आपको फन फ्लिप्स वगैरह वेफर्स नहीं खाना, बिकॉज इट लीड्स टू द डिपोजिशन ऑफ शुगर कंटेंट इन योर टीथ। सो आपको ऐसे फूड खाना है जो आपके टीथ में शुगर कंटेंट को कम से कम डिपॉजिट होने दे। दैट इज योर रॉ वेजिटेबल्स, कैरेट, रेडिश, कैबेज, फ्रेश फ्रूट्स, पर्टिकुलरली सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट दैट इज जो आपके खट्टे होते हैं, लाइक ग्रेप्स हो गया, ओके, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। नाउ अवॉइड ईटिंग स्टिकी एंड स्टार्ची फूड्स एंड स्वीट। वो यहाँ पे बोल रहे हैं चॉकलेट, टॉफीज, आइसक्रीम एक्सेट्रा। सी, बिकॉज यहाँ पे स्टार्ची कंटेंट ज़्यादा है, स्वीट कंटेंट ज़्यादा है, वो आपके प्लेग फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं। एंड आपने इसके रिगार्डिंग एक ऐड भी देखी होगी कि एक ग्रैंड पेरेंट आती है, वो अपनी ग्रैंड सन को लड्डू खिलाती है, ओके, बट उसकी मम्मा को ये रहता है कि सब उसे इतना प्यार करते हैं और स्टिल उसे रोज लड्डू खाने को मिल रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसके टीथ खराब हो जाएंगे। उसके फादर क्या सजेस्ट करते हैं, डोंट वरी, वो रेगुलरली पेस्ट करता है। सो अगर आप रेगुलरली पेस्ट करते हैं एंड ट्वाइस अ डे ब्रश करते हैं तो अल्टीमेटली आपके टीथ में कोई भी प्लेग नहीं लगेगा, एज वहाँ पे कोई स्टिकी सब्सटेंस डेवलप नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। That's all for today, and please make sure that you make the notes properly in your notebook because it's a very helpful chapter for you. Okay, that's all for today. Thank you.